लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया जब सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही पाने में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कर लो। क्या कमियां रह गई देखो और सुधार लो। जब तक सफल न हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Let's start with the new topic, current electricity. We are discussing current electricity. We are talking about current electricity. In this topic, we are going to study about Ohm's law, which is very, very important. Ohm's law. एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये दिस इज द सोल ऑफ दिस टॉपिक. Ohm's law is the soul of this topic. क्या है ये Ohm's law? State and explain Ohm's law. क्या होता है ये Ohm's law? जब कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होती है, तब कंडक्टर्स में से जाने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे कहते हैं ओहम्स लॉ। कंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। If the physical state of the conductor remains same, if physical state remains same, इसका मतलब क्या होता है? लेंथ, टेम्परेचर, साइज से जब कांस्टेंट होती है, तो कंडक्टर में से जाने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस स्टेटमेंट को ही ओहम्स लॉ कहते हैं। ओहम्स लॉ किसे कहते हैं? If the current flow, if the physical state of the conductor remains constant, यहां मैं लिख रहा हूं if the physical state of conductor remains constant, then current flowing through conductor is directly proportional to potential difference. जब कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होती है, या लेंथ, टेम्परेचर, शेप, साइज जब कांस्टेंट होती है फिजिकल स्टेट, तो कंडक्टर में से जाने वाला जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी स्टेटमेंट को ओहम्स लॉ कहते हैं। दैट इज इफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। I can write this statement like this also. V is directly proportional to I. The meaning is same. Current is directly proportional to potential difference. Potential difference is directly proportional to current. Meaning is same. Then after removing this sign, I can write R into I. Where R is called as, इस R को हम proportionality constant कहते हैं। R is called as proportionality constant. Proportionality constant. V is equal to R, or R is equal to V upon I. Ratio of potential difference to current is called as resistance. From this
define, we can define, I have right to define resistance is equal to ratio of potential difference to current. That is called as resistance. And the unit of resistance is ohm. इसका यूनिट क्या होता है? ओहम. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम. और इसे सिंबल में ऐसा लिख सकते हैं. इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय like this. Resistance is the ratio of potential difference to current. Unit of resistance is ohm. It is represented by this sign, by this symbol. Now let's find out the dimensions. इसके dimensions क्या होते हैं? तो इसके dimensions work done per unit charge is called as electric potential or potential difference divided by I is equal to R is equal to R. तो work done के dimensions 1 in mass, 1 in length, 2 in length minus 2 in time divided by, यहाँ Q नीचे आएगा, Q की जगह हम IT ऐसा लिख सकते हैं, इंटू I, यानी कि डायमेंशंस क्या बनेंगे? 1 in मास, 2 in length minus 2 in I minus 2 in time are the dimensions of resistance. Work done per unit charge. चार्ज के डायमेंशंस यहां मैंने लिख दिए I into T, और करंट के लिए I या I स्क्वायर हो जाएंगे, या आप ये ऊपर आने के बाद I रेस्ट टू माइनस 2 हो जाएंगे, T रेस्ट टू माइनस 2 एज इट इज, L स्क्वायर 1 in mass, 2 in length minus 2 in I minus 2 in time is equal to capital R. Are the dimensions of resistance, are the dimensions of resistance. ओहम्स लॉ किसे कहते हैं? जब कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहती है तो कंडक्टर में से जाने वाला जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इसका मीनिंग ऐसे भी कह सकते हैं कि V is directly proportional to I. प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालने के बाद हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं, कैपिटल R लिया गया है, कैपिटल R को रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहा जाता है, कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन I, पोटेंशियल रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट को ही रेजिस्टेंस कहते हैं, इसका यूनिट ओहम होता है, ये ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है. और इसका डायमेंशन निकालने के लिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज W अपॉन Q लिखा है डिवाइडेड बाय I. वर्क के डायमेंशंस 1 in मास, 2 in length minus 2 in टाइम, और करंट के लिए ये I एज इट इज, वो जो ऊपर वाला Q है वो नीचे आ गया है, इसके डायमेंशंस यहाँ डायरेक्टली लिखा है IT. अब ये लिखने के बाद 1 in मास, 2 in length minus 2 in टाइम, और ये I ये 2 स्क्वायर होता है, ये यहाँ एक 3 बच गया, यहाँ 1 है, यहाँ -3 हो जाएंगे, -3 in टाइम. तो डायमेंशंस ऐसे आएंगे 1 in मास, 2 in length minus 2 in टाइम, -3 in t is equal to R. Let's stop here.